Hello, my dear students. Let us discuss the variable mass system. First of all, welcome all. Okay, join the physics classes with Rajiv sir. And now, after then, we discuss about the variable mass system, the rocket propulsion. Rocket propulsion is the example of variable mass system. As we know that mass is conserved quantity. But at the launching pad, the total mass of the rocket is equal to the mass of rocket and plus the fuel fill site inside it. Okay, at the launching pad, the total mass of the rocket is the sum of mass of rocket and the fuel filled inside it. So when rocket is flying, the fuel is burned and the mass of rocket can change. The propulsion of rocket is the perfect example of variable mass system. The propulsion of rocket as an example of variable mass system and also is the example of mass conservation. As we know that at launching pad the total mass of rocket is the sum of mass of rocket and the fuel filled inside it. So when rocket is flying, the fuel is burned and the mass of rocket is decreases. So it is the example of variable mass system. Suppose at time t0, m0 is equal to m0 is initial mass of the rocket as v0 initial velocity of the rocket, and at time t we have m mass of the rocket left, v velocity acquired by the rocket. As the gases are escaping from rocket, we must have m is greater than m is less than m0 and v is greater than v0. Okay, at initial time when t is 0, means at launching pad, m0 initial mass of the rocket, v0 initial velocity of the rocket, and at time t is equal to t we have m mass of the rocket left, v velocity acquired by the rocket. As the gases are escaping from rocket, we must have m is less than m0. m0 is the initial mass of the rocket and v is greater than v0 because rocket is flying. Okay, suppose for a small interval of time m minus dm, a small decrease in mass, and v plus dv, a small increase in velocity. M minus dm is equal to a small decrease in mass, v plus dv, a small increase in velocity, and Vg is equal to velocity of exhausted gas with respect to the earth. Vg is equal to velocity of exhausted gas with respect to the earth. Now using the principle of conservation of linear momentum, we have mv बराबर m minus dm decrease in mass into v plus dv as increase in velocity plus dm minus vg as mv is the initial momentum of the rocket, m decrease in mass of rocket, and v increase in velocity of rocket plus the mass of exhausted gas. It is the total momentum after collision and it is momentum before collision, both are equal. So mv equal to mv plus m into dv minus dm v minus dm dv minus dm vg. ओके, दोनों को हमने मल्टीप्लाइड किया है. किस इक्वेशन को मल्टीप्लाइड किया है? ये हमारा जो इक्वेशन था एम भी इनिशियल में जो आपके पास मोमेंटम था प्लस m माइनस डी एम जो मास में डिक्रीज हुआ है प्लस v प्लस डी भी जो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हुई है प्लस डी एम
माइनस भी जी, ये स्मॉल मास है उस गैस का जो कि आपको एडजस्ट हो चुकी है, उसका ये आपको जो है स्मॉल मास है। सो इक्वेशन आपके पास है एम भी बराबर एम माइनस डी एम इंटू भी प्लस डी भी प्लस डी एम माइनस भी जी, ये आपका पहला इक्वेशन है। हियर Vg is taken negative because gases escape downward at the rocket move upward, क्योंकि गैस जो है, गैस तो नेचुरल है कि आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और रॉकेट जो है वो आपको अपवार्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इक्वेशन जो है आपके पास एम भी बराबर एम भी प्लस एम डी भी माइनस डी एम भी माइनस डी एम डी भी माइनस डी एम भी जी, दोनों को मल्टीप्लाइड किया है। अब ये डी एम और डी भी जो है वो तो खुद ही काफ़ी स्मॉल है, सो देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो स्मॉल, हेंस इट कैन बी नेग्लेक्टेड एज डी एम एंड डी भी बोथ आर स्मॉल, एज डी एम एंड डी भी both are small, so their product is also small, hence it can be neglected as dm and dv is very small, so their product is also small, hence it is neglected. So equation becomes mdv equal to dm v plus vg, it is equation 2. If u is the relative velocity of burned gas with respect to rocket, then v plus vg की जगह आप u को पुट कर दीजिए। So velocity of burned gas with respect to earth minus velocity of rocket with respect to earth minus v बराबर माइनस vg प्लस v, तो v प्लस vg इक्वल टू माइनस यू, यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए। एम डी भी बराबर माइनस यू डी एम डी भी इक्वल टू माइनस यू डी एम, इक्वेशन आपके पास आ गया है एम डी भी बराबर माइनस यू डी एम। सो डी भी बराबर माइनस यू डी एम बाई एम, इंटीग्रेट कीजिए विद इन द लिमिट। तो डी भी को इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से करेंगे, वी जीरो टैक्स टू भी, डी भी को इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी टैक्स टू फाइनल वेलोसिटी, माइनस यू कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया है हमने, डी एम बाई एम, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, लोअर लिमिट है हमारा एम जीरो इनिशियल मास अप टू जो है मास आपके पास जो है, तो डी वी का इंटीग्रेशन आ जाता है आपके पास भी, डी वी का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाता है भी, द इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बिकम्स भी, लोअर लिमिट आपको भी जीरो है, अपर लिमिट आपको भी है, डी वी का इंटीग्रेशन आपके पास आता है भी, लोअर लिमिट भी जीरो है, अपर लिमिट भी है, माइनस यू डी एम बाई एम का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ई एम, माइनस यू डी एम बाई एम का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ई एम, लोअर लिमिट है इसका एम जीरो, अपर लिमिट है इसका एम, माइनस यू लॉग ई एम, चूँकि डी एम बाई एम का इंटीग्रेशन होता है लॉग ई एम जीरो टैक्स टू एम, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो भी माइनस भी जीरो इक्वल टू इधर भी आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो माइनस यू लॉग ई एम माइनस लॉग ई एम जीरो, माइनस यू लॉग ई एम माइनस लॉग ई एम जीरो, सो माइनस यू लॉग ई एम बाई एम जीरो, और इसको उलट दीजिएगा तो ये निगेटिव साइन हट जाएगा, यू लॉग ई एम जीरो बाई एम, आपके पास इक्वेशन आ जाएगा यू लॉग ई एम जीरो बाई एम, और भी बराबर भी जीरो प्लस यू लॉग ई एम जीरो बाई एम, एच भी बराबर भी जीरो प्लस यू लॉग ई एम जीरो बाई एम, एच भी जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये आपको आ जाएगा भी बराबर यू लॉग ई एम जीरो बाई एम, भी इक्वल टू हो जाएगा यू लॉग ई एम जीरो बाई एम, यहाँ से देख लीजिए इंटीग्रेट कहाँ से किए हैं, डी भी का इंटीग्रेशन भी होता है भी जीरो टैक्स टू भी बराबर माइनस यू लॉग ई एम जीरो टैक्स टू एम, और ये आपको हो जाएगा भी माइनस भी जीरो बराबर माइनस यू लॉग ई एम माइनस लॉग ई एम जीरो, इक्वल टू आपके पास हो जाएगा माइनस यू लॉग ई एम बाई एम जीरो माइनस यू लॉग ई एम बाई एम जीरो, और यदि हम इसको उलट देते हैं, ठीक है ना, रिवर्स कर देते हैं, ये निगेटिव का साइन आपको हट जाता है, तो आपके पास आ जाएगा यू लॉग ई एम जीरो बाई एम, और भी बराबर भी जीरो प्लस यू लॉग ई एम जीरो बाई एम, एच भी जीरो इक्वल टू जीरो, सो भी बराबर यू लॉग ई एम जीरो बाई एम, और लॉग ई का न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दीजिए, तो लॉग ई बराबर हो जाएगा 2.3026 लॉग बेस 10, तो 2.3026, यू तो अपनी जगह है ही, लॉग बेस 10 एम जीरो बाई एम, यही जो है आपको वेलोसिटी होती है।
इसके बाद होता है थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट। थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट निकालनी है, तो थ्रस्ट क्या हो गया? इट इज द फोर्स विच द रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड। इट इज द फोर्स विच द रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड। व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट is the force which the rocket moves forward. The thrust is the force which the rocket moves forward. यही आपको बेसिकली थ्रस्ट होता है, वो फोर्स जिससे कि रॉकेट आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, वही आपको बेसिकली थ्रस्ट है। यूजिंग इक्वेशन एम डी वी बराबर माइनस यू डी एम, ये पहले ही इक्वेशन निकाल चुके हैं। एम डी वी इक्वल टू माइनस यू डी एम, सो डिवाइडेड बाई डी टी, एम डी वी बाई डी टी बराबर माइनस यू डी एम बाई dt, and change in velocity with respect to time. So at the place of dv by dt we write a acceleration. So m a is equal to minus u dm by dt, और m a की जगह आप f को पुट कर दीजिए, f बराबर माइनस यू डी एम बाई डी टी। ये निगेटिव साइन सोच करता है कि थ्रस्ट जो है रॉकेट का वो आपको अपवार्ड डायरेक्शन में है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, fuel is consumed at the rate of 100 kg per second. Fuel is consumed at the rate of 100 kg per second in a rocket. The exhausted gas are ejected at a speed of 4.5 into 10 to the power 4 meter per second. What is the thrust experienced by the rocket? Fuel is consumed at the rate of 100 kg per second in a rocket. The exhausted gases are ejected at a speed of 4.5 into 10 to the power 4 meter per second. What is the thrust experienced by the rocket? आपको दिया हुआ है गिवन u बराबर 4.5 into 10 to the power 4 meter per second. So dm by dt is equal to 100 kg per second दिया हुआ है। थ्रस्ट का फॉर्मूला डाल दीजिए, u dm by dt, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आ गया आंसर u आपको दे दिया है 4.5 इंटू 10 पे पावर 4 मीटर पर सेकेंड। डी एम बाई डी टी है आपको 100 kg पर सेकेंड। सो एफ बराबर माइनस यू डी एम बाई डी टी, यू का वैल्यू 4.5 इंटू 10 पे पावर 4 डाला है, डी एम बाई डी टी आपको 100 kg पर सेकेंड डाला हुआ है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, फोर्स आपको आ जाएगा 4.5 इंटू 10 पे पावर 6 न्यूटन। In the next session, we discuss about connected force. Till then, goodbye. Have a nice day.